good afternoon, students. In the previous lecture, we started a chapter which was chapter number 11, the pond. Okay, हमने पेज नंबर 97 तक किया था. Now we are moving towards page number 98, and we'll start with the first paragraph. That is, one day when I reached the pond. अब जब वो boy pond के पास पहुंचा एक दिन, I found buffaloes bathing in it. मैंने देखा कि buffaloes पानी में नहा रही है. Their owner, a boy little older than me. अब उसका वो buffalo का owner मतलब किसकी buffalo थी वो? उसका मालिक कौन था? एक छोटा सा बच्चा ही था जो उससे थोड़ा बड़ा था. Was swimming alone in the middle of the pond. और वो बच्चा pond में बीच में swimming कर रहा था. He pulled himself up on the back of one of his buffaloes. और फिर वो बच्चा वो buffalo के बैक के ऊपर चढ़ गया. Stretched his slim brown body out on the animal's glistening back and started singing to himself. उसने क्या किया? buffalo के body के ऊपर चढ़ गया और वो उसका body कैसा था? एकदम brown slim था, ठीक है, दुबला पतला था, और वो अपने आप गाने लगा, ठीक है. When the boy saw me staring at him, मतलब जब वो बॉय ने ऐसे ऐसे घूरते हुए देखा, he got startled. Then he smiled at me. और फिर वो ऐसे देखने लगा और फिर उसने मेरे सामने स्माइल किया. Showing his gleaming white teeth in his sun tan face. और अपने white teeth दिखा रहा था. पूरे सन में वो स्विमिंग कर रहा था ना, तो एकदम उसका पूरा फेस टैन हो चुका था. He invited me into the water for a swim. और फिर मुझे स्विमिंग के लिए उसने इनवाइट किया. Sorry. I told him I could not swim and he offered to teach me. उसने वो बच्चा बोला कि मेरे को तो नहीं आता स्विमिंग. तो वो बच्चा बोला कोई नहीं, मैं तुझे सिखा दूंगा. I was uncertain, मतलब मैं श्योर नहीं था कि जाना है कि नहीं. Knowing that grandmother disapproved of my mingling with village children. उसको पता था कि उसकी जो दादी है उसको पसंद नहीं था कि वो कोई भी विलेज के बच्चों के साथ बात करे. But finally decided that grandfather would get me out of any trouble that might arise. But मुझे पता है कि मेरे दादा है ना, वो तो मुझे किसी भी सिचुएशन से निकाल ही देंगे. So I took the brave step of accepting the boy's offer. मैंने एक अपना स्टेप लिया कि मैं ये बॉय की ऑफर जो है वो एक्सेप्ट कर लूँगा. The boy dived off the back of his buffalo and swam across to me. मतलब वो buffalo के ऊपर से ऐसे नीचे डाइव किया और स्विम करके वो बॉय के पास आया. I removed my shirt and shorts and followed his instruction until I was floundering about among the water lilies. मतलब floundering का मतलब क्या है? Splashing about, trying to swim but with some difficulty. ऐसे 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 swim करता है ना वो difficulty के साथ. That is what floundering is called. और उसने start किया. Water lilies थी वहाँ पे. His name was Ramu. वो बच्चे का नाम क्या था? रामू. And he promised to give me swimming lessons every afternoon. और वो बॉय ने बोला कि मैं तुझे हर रोज स्विमिंग सिखाऊंगा. So in the afternoon, especially during summer, when everyone else took a nap, we met. अब दोपहर को, ठीक है, समर सीजन होती है, मतलब सब सो जाते हैं. नैप मतलब एक जोकू ले लो. At that time हमने वापस स्विमिंग सीखने का सोचा था. Just as my swimming improved, my friendship with Ramu blossomed too. जैसे जैसे मेरी स्विमिंग भी अच्छी होने लगी वैसे वैसे हमारी फ्रेंडशिप भी और स्ट्रांग होती गई. Before long, I was able to swim across the pond and sit astride a buffalo with Ramu. पहले ऐसा होता था कि मैं थोड़ा स्विम करता था, उसके बाद बफेलो के ऊपर बैठ जाता था रामू के बाजू. The contented buffalo would stand like an island into the middle of a muddy ocean. अब वो बफेलो कैसे खड़ी हो जाती थी ओशन में, पॉन्ड में, जैसे एक आइलैंड होता है ना, वैसे इन द मिडल ऑफ द मडी ओशन. मडी कोई ओशन होता है, उसके ऊपर एक आइलैंड बन जाती है ना, वैसे ये बफेलो भी खड़ी रह जाती थी. देखो यहाँ पे अगर पिक्चर देखोगे तो बफेलो ऐसे ही खड़ी है, सिर्फ उसका फेस बाहर है, बाकी वो दोनों ऊपर बैठे हुए हैं.
ठीक है। Sometimes we would try acting the buffaloes with Ramu and me sitting on different beasts. Sadly, the buffaloes were lazy creatures and after much cajoling would leave a comfortable spot only to immediately go and settle in another. फिर क्या होता था, ये बफेलोज तो वैसे भी बहुत ही ज़्यादा लेजी होती है, ठीक है। तो वो लोग ट्राई करते थे रेसिंग द बफेलोज के, बफेलोज के साथ हम रेस कैसे कर पाते, बट ये बफेलोज तो आरसू कभी कुछ करती नहीं है, ठीक है, वैसे ही खड़ी रह जाती थी। And after much cajoling would leave a comfortable spot only to immediately go and settle in another. If they were in no mood for games, they would simply roll over on their backs, sliding us off into green slime on the of the pond. अब जब बफेलो अगर कोई मूड में ना हो तो वो कुछ नहीं करती थी। They would simply roll over on their backs, मतलब बफेलोज और वो बच्चे भी अगर मूड में ना हो then they will simply roll over their backs, sliding us off into green slime of the pond. और फिर वो बफेलो क्या करती थी, उन लोग को ऐसे नीचे फेंक देती। Emerging from the pond in shades of green and brown, I would slip into the house through the bathroom and bath under the tap before getting into my clothes. फिर उसको डर तो लगता था तो वो क्या करता था, I would slip into the house through the bathroom, मैं बाथरूम से अंदर जाता था, and bathe under the tap, और फिर बाथ कहाँ पे लेता था, टैप के नीचे, before getting into my clothes, क्लोथ्स को पहनने से पहले। रामू came from a family of low caste farmers. अब रामू एक ऐसी फैमिली से आता था जो बहुत ही लो कास्ट फार्मर्स की, and had received no schooling, उसको कोई स्कूलिंग भी नहीं मिली थी। However, he was well versed in folklore. Folklore मतलब having deep knowledge of myths, legend and customs. उसको बहुत ही अच्छी नॉलेज थी ये सारी चीज़ों के बारे में। And knew a great deal about birds and animals. उसको birds और animals के बारे में भी बहुत कुछ मालूम था, ठीक है। ऐसा नहीं था कि वो स्कूल नहीं गया था तो उसको कुछ पता नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं था। Many birds are scared. बहुत सारे birds डर जाते थे। He told me as a blue jay swooped down from the peepal tree and carried off a grasshopper. उसने बताया मुझे कि कैसे एक स्वूप ब्लू जे स्वूप मतलब उसका मतलब है फ्लू डाउन वेरी क्विकली टू अटैक, मतलब ऐसे बर्ड्स कैसे अटैक करने के लिए एकदम स्पीड में करते हैं ना, वैसे ही वो भाग और फिर नीचे आके ग्रासहॉपर को पकड़ लिया। रामू सेड दैट बोथ द ब्लू जे एंड द लॉर्ड शिवा वर कॉल्ड नीलकंठ। दोनों ब्लू जे और लॉर्ड शिवा दोनों को बोला जाता है नीलकंठ। शिवा हैड अ ब्लू थ्रोट लाइक द बर्ड। शिवा को ये जो थ्रोट था ना नीलकंठ इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसको ब्लू थ्रोट था, ठीक है, बर्ड के जैसे। बिकॉज आउट ऑफ पिटी फॉर द ह्यूमन रेस ही हैड स्वेलोड अ डेडली पॉइजन विच हैड द पावर टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। क्योंकि लॉर्ड शिवा ने तो वो पॉइजन खाया था ना, इसलिए उसका थ्रोट ब्लू हो चुका था। कीपिंग द पॉइजन इन हिज थ्रोट ही हैड नॉट लेट इट गो फर्दर। उन्होंने पॉइजन अपने थ्रोट में रख लिया था और आगे बढ़ने नहीं दिया था। आर स्क्विरल्स स्कैर्ड? क्या स्क्विरल्स भी डरती है? आई आस्क्ड, मैंने पूछा। लॉर्ड कृष्णा लव्ड देम। लॉर्ड कृष्णा थे ना, वो उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं, सेड रामू। He would take them in his arms and stroke them with his long fingers. He would take them in his arms, ठीक है, and stroke them with his long fingers. ऐसे ऐसे strokes करते थे। That is why there are 4 dark lines down their backs from head to tail. ये ऐसे ऐसे strokes करते थे ना, इसलिए squirrels को देखो 4 black lines होती है, ठीक है, वो इसलिए। Krishna was very dark and the lines are the mark of his fingers. कृष्णा बहुत ही ज़्यादा डार्क था और वो लाइन्स जो है ना वो उसकी फिंगर्स के मार्क्स थे। Once while sitting on a buffalo, एक बार जब बफेलो के ऊपर बैठे थे तब रामू and I watched a pair of sarus cranes prance and caper around each other. एक बार हम लोग बफेलो पर बैठे थे तब हमने pair of sarus cranes, ठीक है, वो देखा। Prance and
caper around each other. Prance मतलब dance in a lively manner and leap about dance. ऐसे 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 डांस कर रहे थे, ठीक है. These tall stalk like birds sorry, with red heads and long red legs are known to be devoted companions. The villagers believed that if a saras is killed, its mate would haunt the place for weeks. Villagers ऐसा बोलते थे अगर कोई सरस क्रेन को किसी ने मार दिया तो his mate मतलब उसका जो पार्टनर था वो घूमता था, would haunt the place for weeks. हॉन्ट मालूम है किसी को? अगर पता हो तो इट रिमेन इन अ प्लेस फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, वहीं पे घूमता रहता है, ठीक है. कॉलिंग आउट सैडली एंड समटाइम्स इवन पिनिंग अवे एंड डाइंग ऑफ ग्रीफ. मतलब ऐसे चाहिए मुझे वो सैडनेस में एकदम रो रहा है, वैसे 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 घूमता है. The सरस were looked after well by the villagers. Villagers बहुत अच्छे से सरस को रखते थे and they in turn would often adopt a village and live on its outskirts. सरस भी विलेज के पास आउटस्कर्ट्स में ही रहते थे. The villagers believed they were as good as watchdogs. और villagers को लगता था कि वो जैसे डॉग्स होते हैं ना, watchdogs, उनके जैसे ही थे. As they gave loud trumpet-like calls if strangers approached. अगर कोई स्ट्रेंजर विलेज में घुस आए तो वो एक बहुत ही ज़्यादा आवाज़ बड़ी करते थे. आई वॉज फैसिनेटेड टू नो दिस. मुझे ये सुन के बहुत ही अच्छा लगा. द पेयर ऑफ सरस क्रेन्स सीम टू हैव अडॉप्टेड अवर पॉन्ड एंड बंगलो फॉर वी सो देम ऑफन इन द कमिंग मंथ्स. ऐसा लगता है कि सरस क्रेन्स ने हमारे पॉन्ड और बंगलो को भी अडॉप्ट कर लिया है क्योंकि हमने भी उनको बहुत सारी बार देखा हुआ है, ठीक है. ग्रैंडफादर टॉट मी दैट वी शुड बी जेंटल विद बर्ड्स एंड एनिमल्स. मेरे दादा ने मुझे सिखाया कि हमें बर्ड्स और एनिमल्स के साथ बहुत ही ज़्यादा जेंटल रहना चाहिए. दैट वी शुड नॉट किल दैम इनडिस्क्रिमिनेटली. उनके साथ कोई डिफरेंस कर रख के हमें उसे मारना नहीं चाहिए. वी मस्ट एक्नॉलेज देयर राइट्स ऑन द अर्थ. हमें उनकी जो राइट्स है उसको बचा कर मतलब एक्नॉलेज करना चाहिए. सेड ग्रैंडफादर. Everywhere birds and animals are finding it more difficult to live because we are destroying their forest. Birds और animals को अभी रहना बहुत ही ज़्यादा difficult हो गया है क्योंकि हम उनके forest बर्बाद कर रहे हैं, ठीक है, उनका घर बर्बाद कर रहे हैं. They have to keep moving as the trees disappear. अब trees चले जाएंगे तो उनको भी एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ेगा. Ramu and I spent a lot of time together at the pond during long summer afternoons. समर आफ्टरनून्स में रामू और मैं बहुत सारा टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करते थे. वी नेवर सो ईच अदर अगेन आफ्टर आई लेफ्ट माई ग्रैंड पेरेंट्स हाउस. मैंने उसको कभी नहीं देखा जब मैंने ग्रैंड पेरेंट्स का हाउस छोड़ा उसके बाद. ही कुड नॉट रीड और राइट सो वी वर अनेबल टू कीप इन टच. वो लिख नहीं सकता था, कुछ रीड नहीं कर सकता था, तो हम उनके टच में मैं उनके टच में नहीं रह पाया. No one knew of our friendship. किसी को भी हमारी फ्रेंडशिप के बारे में पता नहीं चला. Except the buffaloes and the frogs and the sarus cranes who were our confidence. सिर्फ किसको मालूम था? जो बफेलोज वहाँ पे थी उनको मालूम था उनकी फ्रेंडशिप के बारे में. फिर जो फ्रॉग्स थे, जो सरस क्रेन्स थे, एंड आवर कॉन्फिडेंस. कॉन्फिडेंस मतलब समवन यू कैन ट्रस्ट योर सीक्रेट विथ. They accepted us as part of their own world. उन्होंने हमें अपने वर्ल्ड में एक्सेप्ट कर लिया था. Their muddy but comfortable pond. And when I went away, both they and Ramu must have believed that I would return again like the birds. अब वो लोग भी सोचते होंगे कि मैं चला गया, अब वापस रिटर्न वैसे ही आऊँगा जैसे बर्ड्स आते हैं, ठीक है. सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द स्टोरी. अगर इसमें से कुछ भी समझ में ना आए तो यू कैन आस्क मी इन द Zoom class. Okay? So that's it for today. Take care everyone. Bye bye.